चालू किया है हमने, तो उसमें हमने चैंटिंग पे 5-6 सेशंस में चैंटिंग का मूड, विजन एंड उसमें डूज एंड डोंट्स ये सब बताए चैंटिंग्स के। उसके बाद अभी हमने एक लेक्चर किया था हियरिंग के ऊपर, वो साइमल्टेनियसली प्रीचर्स ग्रुप में चल रहा है वो आर्ट ऑफ हियरिंग। तो आज ये सीरीज भी हम चालू कर रहे हैं प्रीचिंग सर्विसेज के बारे में, या आर्ट ऑफ प्रीचिंग के रिगार्डिंग। तो इसके अंतर्गत हम, ये बहुत अच्छा पुस्तक है जो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज के द्वारा लिखा गया है, तो उसमें से हम श्रील प्रभुपाद का विजन एंड मिशन क्या है प्रीचिंग के लिए, क्योंकि हम प्रचार करके श्रील प्रभुपाद को असिस्ट करवाते हैं, उनकी हम सहायता करते हैं। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम प्रभुपाद के मिशन में प्रभुपाद को मदद करवा रहे हैं, असिस्ट, उनको हेल्प करवा रहे हैं, हम एक माध्यम बन रहे हैं। तो माध्यम बनने के कुछ गुण होते हैं, तो वो कैसे हम विकास करेंगे और हम कैसे ये समझेंगे कि प्रभुपाद कैसा, किस प्रकार का प्रचार चाहते थे और प्रचारक का क्या भाव होना चाहिए प्रचार के दरमियान, तो वो ये सब में हम चर्चा करेंगे। तो इधर प्रलयुग है, प्रस्तावना है, तो उसमें आई वर्शिप श्रील प्रभुपाद लिखा है कि प्रभुपाद का प्रचार के लिए क्या मूड है। I worship Srila Prabhupada to a young man who declared, to a young man Prabhupada declared, what? I am God. And Prabhupada wrote back, you are not God, you are a dog. I worship Srila Prabhupada, who at a meeting of influential Hindus in Japan suddenly shouted, stop him, in the middle of their Mayavadi's Guru speech. I worship Srila Prabhupada, who matter of factually told a press reporter that the supposed astronauts could not travel to the moon because the moon is far from the earth than is the sun. Who boldly spoke that if you want to go on moon, in that road first sun will come, So none of has just gone to moon. They are just making a fools. This was the conviction of Srila Prabhupada, and he just told in 70s when this moon landing, they was claiming that we just gone to moon, but no one has gone to moon. And whatever if they gone to moon, but what they have seen there, there's rocks. In moon planet also people lives, moon god is there. So many, even when moonlight reflects or falls upon so many trees on earth, then that plants become medicine, because that cooling sinus or some from that light, reflective lights, it falls upon that plants and trees, and then it's become medicine. So much cooling and so much potency that moon have, but they could not recognize.
I worship Srila Prabhupada, who told us to make a great propaganda on 2 points. The scientists have not gone to the moon and they cannot even manufacture a chicken egg. Scientists cannot even manufacture chicken egg. They cannot produce any life. Because life doesn't come from the matters. The scientist says, life comes from life only. Life comes from the spirit. You cannot make even a tiny ant in your laboratory. Then that who is just making that things alive, and that is God, not you. That's why God is superior to you. Yes. I worship Srila Prabhupada, who ordered that life comes from life be printed and widely distributed as an unabashed assault on the cheating of pseudoscientists. I worship Srila Prabhupada, who said, I cannot make any compromise. So long I shall live, I shall make no compromise. Why I shall mislead the people? I worship Srila Prabhupada, who never tried who never tired of teaching. You are not the body. You are an eternal servant of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Unconditional surrender to His lotus feet is the purpose of human life. I worship Srila Prabhupada, who knew our disease and repeatedly taught, give up sex. Sex is the binding force within this material world. I worship Srila Prabhupada, who declared, I am not anxious to go to Goloka Vrindavan. I just want to expose all these rascals who pretended to be yogis and swamis. I worship Srila Prabhupada, who spoke of urinating on kicking the face of a bogus avatar, openly called him a cheater during a press conference, and recommended to his disciples to the somewhat milder tactic of throwing a pie into the rascal's face. I worship Srila Prabhupada, whose books are the perfect antidote for all forms of rascaldom and the base form of preaching. I worship Srila Prabhupada, the Lord of my life, the ambassador of the spiritual world, and a personal friend of Krishna. He never compromised in preaching, and I pray to him for the encourage and conviction to eternally follow in his divine lotus footsteps. With this conviction, Maharaj begins to write. Preaching for chapter 1. Preaching means fighting. Preaching means fighting. Bolo. Preaching means Fighting. Srila Prabhupada fought for Krishna. He made no secret that his manifesto was meant to bring about a revolution in the impious life of a misdirected civilization. To effect this, he tirelessly promoted Krishna consciousness, also emphasizing the need to do so energetically, effectively, and aggressively. He challenged everyone in this world and every theory that every subtly opposed the acceptance of Krishna as the Supreme Personality of Godhead, and the maximum that the sole duty of every jiva is total unmitigated surrender at Krishna's lotus feet. So Prabhupada's quotes is there. Means Prabhupada promoted Krishna consciousness against this misdirected civilization that you all are going to wrong. Prabhupada's all and soul preaching's purpose was to convey the message that Krishna is the Supreme Personality of Godhead.
And whatever our preaching purpose is to make people accept that Krishna is the Supreme Personality of God. Whatever we do, what should be the message? That Krishna is the Supreme God, not God. He is the Supreme God only. Now Prabhupada quotes, our fighting is against atheism. They say there is no God. God is dead. I am God. You are God. We are fighting against these principles. So our fighting is very strong. Don't think that we are sitting ideally. I have come here to fight with this atheist. We go everywhere. We are fighting with atheists all over the world. You know? So we have to remove this conception that you are God, I am God, God is dead, no God. Atheists may be very expert in mental speculation and may be so-called great philosophers, but they can be defeated by Vaishnava, firmly situated in his conviction and God consciousness. Who can defeat one who is a fully convinced devotee and who is a well situated in his Krishna consciousness? One whose consciousness is Krishna consciousness, and one who firm believe and have a great conviction, faith and conviction that yes, whatever I am spreading, that is the only truth. He just realized, he just got an experience. He can defeat this kind of thing. Following in the footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu, all preachers engaged in the service of ISKCON should be very expert in putting forward strong arguments and defeating all type of atheists. तो preaching करने के लिए क्या qualities बता रहे हैं? यही firmly situated in our conviction and make ourselves Krishna consciousness. Yes, and become an expert to put an argument against the atheist, to defend and protect our real philosophy of Bhagavad and Bhagavad Gita. Yes, we have to fight. Otherwise, what is the meaning of preaching? If you think that everything will be accepted very easily, then what is the necessity of preaching? You know? These rascals will not understand Krishna. Just like the owl. The owl will never open his eyes to see there is a sunlight. However, you may say, Mr. Owl, please open your eyes and see the sun. No, there is no sun. I don't see. This is owl civilization. उल्लू की सभ्यता. So you have to fight with these owls. You must be very strong, specifically the sannyasis. We have to fight with the owls. We have to open their eyes by force. This Krishna consciousness movement is a fighting against all the owls. You will not understand Krishna. You don't want to see the reality. Fight must go on. Fight cannot be stopped. So fight like brave soldiers. Krishna will help you. Don't make any compromise. No truce with these demons. Fight must be. Chaitanya Charitamrita stated, Prema pracharanara pashanda dalana dui karye avadut karena brahmana. For two purposes, to spread the cult of bhakti and to defeat and subdue the atheist. Lord Nityananda, the most dedicated devotee of the Lord, moved throughout the country.
What was Nityanand Prabhu's job? To spread the bhakti cult and to defeat and subdue the atheist. Yes. So Nityanand Prabhu is the first preacher of this movement. Yeah. So he is just teaching by his own example that he was just spreading Krishna consciousness. He was telling people, please chant Hare Krishna. You know. And simultaneously he was cutting the atheistic kind of ideas. Lord Krishna appeared in every millennium for two purposes, namely to deliver the devotees and kill the non-devotees. His devotees also have two similar purposes: to preach bhakti cult of Krishna consciousness and defeat all kind of agnostics and atheistic demons. Nityananda Prabhu carried out the order of Lord Chaitanya Mahaprabhu in this way, and those who strictly follow Nityananda Prabhu perform the same activities. As a strict follower of Nityananda Prabhu, Srila Prabhupada was uncompromising, and too many must have seemed extreme in insisting that surrender to Krishna is the only goal of life, and that all and life and that all else is nonsense. He was not always belligerent, but his occasional aggressive tactics showed us that holy men sometimes have to be hellfire men. As Srila Prabhupada said, sometimes when we preach, we have to act like Kshatriyas, but it was the only sometimes that Srila Prabhupada would provoke and antagonize people. For instance, one is in Japan where few people were interested to assist the devotees. He blasted the Mayavad concept of an Indian man who until then had been helping his disciples, thus alienating him. Later Srila Prabhupada commented, never mind, one day he will appreciate how we have chastised him for his rascaldom. Another time, speaking to a man in Kolkata, Prabhupada said, Krishna is the Supreme Lord and all others are demigods. The man became little nervous and quoted a popular Bengali impersonator who thought that all gods and all methods of worship are the same. He is an upstart. Prabhupada said, that is not the teaching of Gita. What is this other teaching? It is utter confusion. If you go on speaking like this, the man said angrily, I will have to leave this place. Please don't criticize this Paramahamsa. Why not? Prabhupada said. He is a concoctor. The man got up and left calling out, you don't know Krishna, as he left the room. Similar to this, on several occasions Prabhupada got into shouting matches, mostly with Indians. He described his preaching technique. I am little temperamental. I used to use words like rascal and so on. I never compromised. They used to call it preaching with peacocks in one hand and a Bhagavatam in another. That is how I preach. The Vedic tradition, although not one of the crusts and inquisitions programs or jihadis, has nevertheless always been, until relatively recently, philosophically highly polemic. Why so was established by Adi Sankara. This is the description of that Vedic tradition and related to Sankaracharya philosophy. So, thing is, as far as my understanding that I will share from this whole chapter,
that preaching means fighting means, see, thing is that we have to make people understand that Krishna is Bhagavan. Two things. Krishna is Bhagavan and we are eternal servant of that Krishna. Else is not the part. No? कोई बोल सकता है ना कि क्या प्रीचिंग करेंगे, तो प्रीच यही करना है कि एक मंत्र है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र, एक भगवान है वो है कृष्ण, एक शास्त्र है वो है भगवद गीता। और एक गुरु है श्रील प्रभुपाद। हम लोगों को बता सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ो, भगवद गीता पढ़ो, प्रवचन में आओ, बट कोई अगर बोलता है पर अरे ये भी तो है, मैं ये मंत्र भी करता हूँ, तो उसको हम बता सकते कि भाई हाँ ठीक है, अच्छा है। आप जैसे कोई बोलता है मैं ओम नमः शिवाय भी करता हूँ या ओम नमो भगवते वासुदेवाय भी करता हूँ, तो बहुत अच्छा है, आप करते रहो वो, पर आप हरे कृष्ण महामंत्र भी करो, वो आप जो भी कर रहे हो करते रहो, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जब वो ग्रेजुअली ये भी करेगा वो भी करेगा, हरे कृष्ण महामंत्र भी करेगा ये भी करेगा, तो फिर उसको समझ में आएगा कि अच्छा कहाँ पोटेंसी, कहाँ वो, लेट हिम रियलाइज व्हाई वी शुड टेल टू लिव। उसको लगेगा कि ये लोग ज़्यादा ही वो हो रहे हैं, ऐसा नहीं, ठीक है आपको वो करना है आप कंटिन्यू करो, आप ये भी कर सकते हो, आप इसको ऐड करो, कोई हमें लोगों की लाइफ में कृष्णा को ऐड करवाना, उसको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा छोड़ने के लिए नहीं बोलना, लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है, खाली जोड़ना है, क्या कृष्णा को ऐड करना है बस, और कुछ अरे भक्ति करने के लिए तो ये भी होता है वो भी होता है, वो सब बात की बात है। अभी सिंपल प्रोसेस है कि माला करिए और प्रवचन सुनिए, डोंट्स इंट्रोडक्शन नहीं होने चाहिए, पहले डूज इंट्रोडक्शन होने चाहिए, ये प्रीचिंग का फंडा है। आप उसको पहले एनकरेजिंग वर्ड्स बताओ कि ये हम कर सकते हैं, हम माला तो कर ही सकते हैं, हम प्रवचन में तो आ ही सकते हैं, हम रेगुलरली पुस्तक तो पढ़ ही सकते हैं, हम सेवा में एंगेज हो ही सकते हैं। बस कोई इवन पूछता भी है सामने से कि अच्छा क्या नहीं करना है, वो सब तो दूर की बातें हैं, वो इतना कोई सीरियस इशू नहीं है। क्या नहीं करना है वो तो आप समझ ही जाएंगे, पहले आप ये समझ लो कि क्या करना है। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद ने अमेरिका में गए तो वो सबसे पहले लोग आते थे तो कुछ नहीं बताते थे, वो उनको कीर्तन करवाते थे, भगवद गीता बताते थे, प्रसाद खिलाते थे, बस, और कुछ नहीं करते थे।
इवन आपको पता है प्रभुपाद ने 4 नियम कब इंट्रोडक्शन दिया उनको? 4 नियम तो प्रभुपाद ने बोला ही नहीं था। प्रभुपाद ने बोला कि ठीक है अभी आप लोग 1 महीने के बाद या फिर ऐसे कि आप लोग अभी क्वालिफाइड हो गए हैं दीक्षा लेने के लिए की, तो इसीलिए अगर आप लोगों को दीक्षा लेना है तो अभी आप लोगों को 4 नियम का पालन करना पड़ेगा। कल दीक्षा है, आज आपको बता रहा हूँ कि आपको ये 4 नियम फॉलो करना है। आप लोग रेडी है, वो लोग कल दीक्षा लेंगे। अब देखो पहली बैच को प्रभुपाद ने ऐसा किया और लोग रेडी भी हुए। क्यों? क्योंकि उनके पास कृष्णा कॉन्शियसनेस का हायर टेस्ट, उनकी इंद्रिय और मन कुछ हद तक शुद्ध हो गए थे। उसके बाद जब उनको बोला गया कि ये छोड़ना है, तब उनको समझ में आया कि अच्छा ये सही है। पहले बोला होता तो क्योंकि उनके पास सबड्यूट कुछ मतलब ऐसे 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 सब्सटेंशियल कुछ आनंद करने के लिए था नहीं, पर अभी मन और इंद्रिय क्योंकि शुद्ध भक्ति सेवा करते हुए और प्रोसेस का फॉलो करते हुए, महामंत्र का जाप करते हुए शुद्ध हो चुका है, इसलिए अभी इजी रहेगा उनके लिए का छोड़ना। तो बस यही है। हम भी जैसे आप देखो आज तक हमारे तो एक अलग से 1 साल बाद कैंप होता है, इसमें रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। इधर उधर से व्यक्ति ने जान लिया कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वो एक अलग बात है। या हम एक ऐसा एक आइडिया तो दे ही देते हैं व्यक्ति को कभी कभी कि भाई ओके, सबको पता ही रहता है नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, गेमिंग नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, कोई स्त्री गमन, ये सब नॉर्मली लोगों को पता रहता है। इवन कोई पूछता भी है तो हमें नॉर्मली यही बताना चाहिए। फिर धीरे धीरे वो अपने से इंक्वायरी करेगा या फिर उसको कभी बता, अच्छा प्याज भी नहीं खाता, अच्छा लहसुन भी नहीं खाता, हाँ चॉकलेट भी नहीं खाते, तो टी कॉफ़ी भी नहीं पीते, अच्छा। तो ये धीरे धीरे आएगा। तो आपको ये नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, हाँ नहीं खाना चाहिए, बट कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशंस भी होता है ना। तो कोई बात नहीं, आप प्रोसेस तो फॉलो कर ही रहे हो। धीरे धीरे आपको सेल्फ इंस्पिरेशन, ये कब छोड़ना होता है, कोई पूछेगा कि कब छोड़ना होता है या कब छोड़ा जाए या कैसे छोड़ सकते हैं, तो उनको बताना है कि हाँ जब तक हमें सेल्फ इंस्पिरेशन ना मिले तब तक मतलब क्या बोलते हैं, आप देख सकते हो। जब आपको उसके अंदर हो जाए कि नहीं मुझे करना ही है, अभी ये मेरे को छोड़ना है, तो आप जहाँ से गाइडेंस लेते हो उनसे आप पूछो कि इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं कि क्या, या कोई डायरेक्टली पूछ रहा है कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो फिर क्या खाना चाहिए, या फिर हमें ये भी ज्ञान होना चाहिए कि प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, साइंटिफिकली, लॉजिकली, शास्त्रिकली। कुछ लोगों को शास्त्र में ही से समझ में आ जाता है कि शास्त्र मना कर रहे हैं, तो कुछ लोग बोले लॉजिक क्या है, तो लॉजिकली समझाना पड़ेगा। इवन साइंटिफिकली भी बहुत सारे रेफरेंसेस है, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारे सो कॉल्ड जो कर्मीज हैं वो लोग भी इवन प्याज लहसुन अवॉइड करते हैं। यस, तो हर एक एंगल से हमें ये पता होना चाहिए कि टी कॉफ़ी, ऑनियन गार्लिक, चॉकलेट, ये सब हम क्यों नहीं करते और इससे क्या हो जाता है। समझ रहे हो? मतलब आप देखो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए हमारा कि व्यक्ति को समझ में आ रहे कि क्यों नहीं करना है। कुछ पॉइंट्स होते हैं कि ओके वो रजोगुणी है और तमोगुणी है इसलिए हम नहीं खाते, पर उसको पता ही नहीं है कि रजोगुण और तमोगुण कितना सीरियस है। उसको पता ही नहीं कि रजोगुण तमोगुण होता क्या है, आपने तो बता दिया। समझे? जो लोग जो भाषा समझते हैं उनको वो भाषा में समझाना है। कुछ लोग होते हैं प्याज लहसुन खाने से गुस्सा आ जाता है, जल्दी मुंह में से बात आती है, गुस्सा आ जाता है नो। और कुछ
जो अच्छे सेल्स होते हैं वो प्याज लहसुन खाने से, मैंने कहीं से सुन रहा था, वो मर जाता है ब्रेन में या ऐसा होता है। तो ये सब अच्छा ऐसा होता है, तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल है कि ओ अच्छा गुस्सा आ जाता है, मन शांत नहीं रहता है। तो कुछ ये वाले पॉइंट्स भी बता सकते हैं। और इवन शास्त्र भी मना करते हैं, ये किसी दो पशु के ब्लड से उत्पन्न हुआ है। गाय और गरुड़ एक पुराण में दिया गया, अलग अलग पुराण में अलग अलग घटना है। गाय और गरुड़, वो जो मोहिनी होता है, हाँ बोले कि राहु के जो खून से जो ब्लड टपको उससे लहसुन बना वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो है। तो ये वाला स्टोरी भी बता सकते हैं, मतलब जब कोई पूछे, जब इंक्वायरी करे सामने से तो, वरना तब तक उसको क्या करना है, खाना देना। ठीक है, माला करो, सेवा में लगाओ, उनको पॉजिटिविटी एंगेजमेंट दो, फिर वो अपने आप ही इंक्वायरी करेंगे, और या फिर सामने से ही पूछेंगे कि और क्या होते हैं वगैरह वगैरह। ये प्रसाद है ना? प्रसाद कितना सुंदर होता है। तो आपको पता है प्याज लहसुन कौन छोड़ पाएगा? जब तक व्यक्ति को प्रसाद में टेस्ट नहीं आएगा ना, तब तक वो छोड़ नहीं पाएगा बाहर का खाना और वो सब। तो इसीलिए उसका प्रसाद में टेस्ट लाना बहुत जरूरी है। फिर उसको घर का खाना भी नहीं अच्छा लगेगा, जो प्रसाद है वो नहीं अच्छा लगेगा। फिर ऐसा व्यक्ति प्रसाद को अप्रिशिएट करेगा, और उसको वो जो अप्रिशिएशन है उसका, वो भक्ति है, वो प्रोग्रेस होगा उसका। और उसके बाद फिर वो प्याज लहसुन, चाय, कॉफी, चॉकलेट ये सब गिव अप कर पाएगा। इसीलिए जो नए नए हैं उनके लिए उनको स्वीट महाप्रसाद देना, और बहुत अच्छा उनको प्रसाद, अच्छी क्वालिटी का, उनको जैसा पसंद है जो प्रकार का, ऐसे प्रसाद देते रहना, इससे वो हो जाएगा। इसको बोलते हैं कि हम पॉजिटिवली, मतलब क्या बोलते हैं, उनको वो कर रहे हैं। यस, और प्रसाद में बहुत पावर है। हम जिनको प्रसाद खिलाते हैं, आप देखो वो, फिर आपको क्या लगता है? प्रभुपाद ने बोला कि आई ट्रिक्ड द अमेरिकन्स। कैसे? ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी है कि व्यक्ति को आप प्रसाद दे रहे हो, मतलब उसके मन और इंद्रिया तुष्ट कर रहे हो। उसके बाद बोला जाता है कि सेवा करो, तो देखो वो करेगा ही, क्योंकि प्रसाद खाया है उसने। अगर आप देखो इस्कॉन का प्रचार नहीं हुआ होता, प्रसाद नहीं होता, तो इस्कॉन में कोई सेवा नहीं करता। तो लोग एक प्रसाद खाते हैं और प्रसाद फ्री का होता है, तभी आप कुछ खिला रहे हो, तो लोग ऋणी बन रहे हैं ना, लोग इंडेप्ट बन रहे हैं। यस, और फिर बोलोगे कि प्रभु ये थोड़ा फोल्ड कर देंगे, इधर झाड़ू लगाओ। हाँ, वो ना कैसे बोलेगा, खाया है। तो ये प्रसाद, ये पावर है प्रसाद। और प्रसाद खाने से, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मटीरियलिस्टिक व्यू पॉइंट से बता रहा हूँ मैं कि ठीक है खा रहे हैं इसलिए इंडेप्ट है, नहीं, वो तो एक एक्सटर्नली रीजंस है। इंटरनली क्या है, क्योंकि ये कृष्णा प्रसाद है जो उसकी मन और इंद्रियों को शुद्ध करेगा, और वो प्रसाद ही उसके अंदर सेवा का भाव जगाएगा। इसको बोलते हैं साइंस और साइंटिफिक प्रोसेस। ये भक्ति की प्रोसेस में, ये भक्ति के अंग में कितना पावर है,
बोलते हैं ना प्रसाद इज ट्रांसेंडेंटल, प्रसाद आध्यात्मिक है। तो यही है आध्यात्मिक चीजें का पावर। रूप गोस्वामी बताते हैं कि दो चीजों से भक्ति चालू होता है ना, श्री कृष्ण नामादि इंद्रिय भवे सेवन मुखे ही जीवा दो स्फुरते अदा। तो बोले कि भक्ति टंग से चालू होता है, जीवा से। कैसे? जीवा से दो कार्य होते हैं। एक, हम जीवा से क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का गान करते हैं, और वही जीवा से क्या करते हैं, प्रसाद का आस्वादन करते हैं। तो भक्ति कैसे चालू होता है? महामंत्र का जाप करने से और कृष्ण प्रसाद का आस्वादन करने से। तो जब हम प्रसाद का आस्वादन करवाते हैं, लोगों को प्रसाद भी देते हैं और माला भी करवाते हैं और कीर्तन भी करवाते हैं, मतलब कि उसकी भक्ति की शुरुआत हुई। इसीलिए आप देखो, हम पब्लिक में श्रद्धा का विकास कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके, प्रसाद वितरण करके और श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करके। ये तीन तरीके से हम मास पीपल में श्रद्धा का विकास कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो किसी को भी हमें भक्त बनाना है, तो उसको इवन मान लीजिए कि हम किसी का इंडिविजुअल कल्टीवेशन कर रहे हैं कि चलो कोई हमारा मित्र है कि क्या, कैसे, यस, तो सबसे पहले प्रचार में अगर आपको उसको भक्त बनाना है तो आपको सबसे पहले उससे संबंध का विकास करना पड़ेगा, उसके अच्छे मित्र की तरह। प्रचारक का अर्थ क्या होता है? प्रचारक का अर्थ होता है कि वो मित्र है, तत्वदर्शी है और फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। वो मैं हिंदी में बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्र है, तत्वदर्शी है और उसका गाइड को क्या बोलते हैं हिंदी में? मार्गदर्शक, निर्देशक है। सबसे पहले व्यक्ति को मिलो, उसके बारे में जानो, है ना। सबसे पहले रिलेशन बनता है उसको सुनने से, बोलने से नहीं, सुनाने से नहीं, सुनने से, है ना। हरे कृष्ण, क्या नाम है आपका, क्या पढ़ाई करते हो या क्या जॉब करते हो, कहाँ पे रहते हो, आपका नेटिव किधर है, अच्छा इधर के ही है, अच्छा आप ये करते हैं, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। या आपको मंदिर में क्या, आप बहुत सारे उसको अप्रिशिएट करो, मंदिर में आए, बहुत अच्छे हो आप। बोले कि क्यों? बोले कि देखो आप बहुत सारे, अहमदाबाद में इतने करोड़ों लोग हैं, लाखों लोगों की संख्या में लोग हैं, और आप देखो कुछ लोग मंदिर आते हैं, उसमें से आप एक हो, बहुत अच्छा व्यक्ति हो, उसको अप्रिशिएट, जेन्युइनली अप्रिशिएट कीजिए। कोई ये कोई वो एक मतलब बोलता था ना, ये कोई उसको ऐसे बाटली में उतारने के लिए या फिर ऐसे उसको पकड़ने के लिए या बकरा मुर्गा फंसाने के लिए, ये वाली मानसिकता से नहीं करना, ये स्वाभाविकली होना चाहिए। ये कोई हम प्रोपोगेंडा या स्ट्रेटर्जेटिक प्लानिंग नहीं बना रहा, ये हृदय से होना चाहिए। या ये कोई मशीन या कोई स्टीरियोटाइप प्रोसेस नहीं है कि आया तो क्या करना है, ऐसे मेरा तो इच्छा नहीं है, क्या है उसको, क्या है उसके जन्म, मुझे क्या अभी, क्या पढ़ाई करते हो, जैसे स्टीरियोटाइप पूछता है जैसे, अरे कृष्णा क्या नाम है आपका? है मेरा नाम है छगन। अच्छा छगन, अच्छा क्या पढ़ाई करते हो? अच्छा मैं बीकॉम कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ से कर रहे हो? गुजरात यूनिवर्सिटी।
बरोबर, कहाँ रहते हो? हॉस्टल में रहते हो? अच्छा, बहुत अच्छा। ओके ओके, अच्छा है। तो हमारा प्रोग्राम होता है, आप उसमें आओ। गीता का ये क्या हुआ? ये कनेक्शन कहाँ है? मेरे को जस्ट खाली अपनी बातें बतानी है उसको, ऐसा नहीं है। हरे कृष्णा। सबसे पहले पूछ सकते हैं कैसे हैं आप? बस अच्छे हैं। आप? बस हम भी अच्छे हैं। या फिर लोग पूछेंगे। आप देखो, लोगों से बात करने का कुछ तरीका होता है, लोग कितने इंटरेस्टेड है आप समझ सकते हैं, है ना? अब जो हरे कृष्णा, तो वो कैसे आपको, सबसे पहले उसकी बॉडी लैंग्वेज हम जज कर सकते हैं। आप ऐसे स्माइल, बिग स्माइल, अच्छा एक स्माइली फेस रख के आप उसको ऐसे अप्रोच करोगे, हरे कृष्णा, तो वो बोलेगा हरे कृष्णा, या फिर वो अचानक से ऐसा हो जाएगा हरे कृष्णा, मतलब कि उसको थोड़ा, ये मतलब वो थोड़ा डाउटफुल व्यक्ति है, या वो ऐसा सोचते हैं कि ये मुझे ऐसे क्यों अप्रोच कर रहे हैं, या फिर कोई एक्सट्रोवर्ट है, या फिर कोई बहुत अच्छा है, या उसको बहुत श्रद्धा है ऐसे, हरे कृष्णा, यस हरे कृष्णा। यस, तो आधा तो तभी पता चल गया। फिर आगे कैसे हो आप? बस अच्छा है, मतलब उसको आपसे बात करने में इतना इंटरेस्ट नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि उसने आपसे, आपको पूछा नहीं ना कि आप कैसे हो। अगर वो पूछता कि आप कैसे हो, मतलब ये अच्छा व्यक्ति है, इंटरेस्टेड व्यक्ति है। नहीं पूछा भी मतलब, तो भी हम उसको समझा सकते हैं। कैसे हो आप? ठीक है यार, हम भी बहुत अच्छा है, थैंक यू आपने पूछा। यस, वो स्माइल कर रहा है, मतलब उसको अच्छा लग रहा है, उसको आप पे श्रद्धा है, वो आपको ऐसे ऐसे ये कौन है, ऐसा नहीं है। या फिर आप बहुत लोगों की बॉडी लैंग्वेज जज कर सकते हो, बहुत लोग आप ऐसे में हाँ हरे कृष्णा, या फिर वैसे हाँ, मतलब थोड़ा विनम्र तरीके से वो बिहेव करेंगे कुछ लोग, मतलब उसको आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हो कि ये श्रद्धा का, इसको भक्तों पे श्रद्धा है ना। पर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं क्या, या कुछ लोगों को तो, कुछ एक्सट्रीम भी लोग होंगे हरे कृष्णा हाँ, उसके बाद चले जाएंगे जल्दी जल्दी में, उसको ऐसे अवॉइड करो, ये लोग तो ऐसे ही अभी पैसा मांगेंगे, अभी पैसा मांगी, कुछ अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए आए, अपना कुछ स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आए, कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, तो उनको जाने दो। हरे कृष्णा, यस हरे कृष्णा। तो कुछ लोगों में बात करने का कुछ सेंस होता है, कुछ वो होता है, या कुछ लोग आउट ऑफ फिलोसॉफी की हाँ हाँ नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, एक अच्छा जेंटलमैन की पर्सनालिटी नहीं है वगैरह वगैरह, कुछ लोग ऐसे भी सुनेंगे। बट ऐसे जो सुनेंगे जस्ट खाली सुनने के लिए सुन रहे, आपका रिस्पेक्ट करने के लिए सुन रहे, वो भी बहुत अच्छा व्यक्ति है। बट आप उसको कैसे समझ सकते हो कि ये व्यक्ति जस्ट खाली मुझे रिस्पेक्ट करने के लिए सुन रहा है या सुनने के लिए सुन रहा है? वो इतना, आप जो भी बोलेंगे तो उसमें ऐसे हाँ हाँ करेगा या सुनता रहेगा, कुछ पूछेगा नहीं या कुछ बोलेगा नहीं। समझे?
तो एक स्टेटमेंट भी है कि भाई डोंट ट्राई टू मेक पीपल इंटरेस्टेड, कैच इंटरेस्टेड पीपल, है ना। हम किसमें क्यों इंटरेस्ट जगाने लगे, पकड़ना कैसे लोगों को है, समय किस लोगों को देना है, जो इंटरेस्टेड है ऑलरेडी। इंटरेस्ट डेवलप कराने में बहुत प्रोसेस लगता है, उसमें बहुत मैच्योरिटी और एक रिलेशन चाहिए। यस, तो प्रीचिंग मीन्स इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। फर्स्ट स्टेप इज टू डेवलप a connection or good relation with that person. Yes, हरे कृष्णा, हाउ आर यू, फाइन, आप बहुत अच्छा। तो आपको समझ में आ गया, ये भी पूछ रहा है मतलब ये अच्छा फील कर रहा है, यस, इसको अच्छा लग रहा है। और उसके बाद हमें कम्युनिकेट करना है। क्या कम्युनिकेट करना है कि आप सोच रहे हो कि और कैसे हो आप, ठीक है, आपका नाम क्या है, सबसे पहले उसके बाद कैसे हो पूछ के क्या करना है, नाम पूछना है। या तो सबसे पहले आप नाम पूछ सकते हो, और फिर कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले से लेके लास्ट तक उसका नाम बोलो। मान लो उसका नाम है पार्थ, तो पार्थ जी, इसलिए हमने आपको रोका है, तो पार्थ जी आपको क्या लगता है, तो पार्थ जी आपको क्या है, समझ रहे हो। उसको अपना नाम सुनना पसंद है रिपीटेडली। जब भी नाम आता है व्यक्ति अलर्ट ध्यान से सुनता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए ये अच्छा कम्युनिकेशन है कि भाई हम क्या करें, उसका नाम जान के उसके नाम से ही बात करें। कि पार्थ जी आप सोच रहे होंगे कि आपको क्यों आप, और ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, एक जेंटलमैन की निशानी। अब देखो मैं बहुत बार पूछता हूँ आपका शुभ नाम, अच्छा मेरा नाम शुभ है, आपका व्हाट्स योर गुड नेम बाय द वे, नाम ये हमारा नाम, और फिर आप वो अपना नाम बताए तो आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, यस, कि आपका नाम पार्थ है, मेरा नाम ये है ना। और हम इधर एक सेल्फलेस सर्विस दे रहे हैं, हम इधर एक वॉलेंटरीली सर्विस, वॉलेंटरी पता चल रहा है ना, हम कुछ वॉलेंटरीली सर्विस मतलब क्या बोलते हैं दे रहे हैं। ऐसे मैं ये पढ़ाई करता हूँ, या फिर मतलब ना, या हम ये करते हैं, तो इसको पता चलेगा अच्छा ये है, मतलब मैं इससे बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो। या फिर मान लीजिए कि मंदिर में ही ज्वाइन है और कुछ नहीं, मतलब क्या बोलते कर रहे हैं वगैरह वगैरह की क्या, यस, तो बता सकते हैं कि हम इधर एक सर्विस के मतलब क्या बोलते हैं, हम एक वॉलेंटरीली एक हम एक सर्विस मतलब क्या बोलते कर रहे हैं, यस। तो ये मान लीजिए कि भी प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम आपको ये इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं क्या, अरे हाँ समझ रहे हो। या फिर कुछ लोग ऐसा होते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, ये हम स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, तो आपके लिए ये हम आप
जैसे स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं या हम ये आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो अच्छा हमारे लिए कर रहे हैं, वर्ड्स का बहुत प्रभाव होता है। अच्छा हमारे लिए कर रहे हैं, हमने ये अब आप लोगों जैसे स्टूडेंट्स के लिए रखा है, यस, और आप लोगों के लिए भी रखा है, या तो एक्सक्यूज मी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आप 2 मिनट दे पाएंगे अपने, आप अपने कीमती 2 मिनट दे पाएंगे, या पहले ही पूछ लो सबसे पहले स्टार्टिंग में कि आप अपने समय में कीमती कुछ 2 मिनट दे पाएंगे, मुझे आपको कुछ इंफॉर्मेटिव कुछ बताना, या हमें आपसे कुछ अच्छी बातें शेयर करनी। ओह बताइए, हाँ बताइए, समझ। फिर ऐसा बोल सकते कैसे आप लोग, या फिर इंट्रोडक्शन होने के बाद कि 2 मिनट होगा आपके पास कुछ बताना, परमिशन लेके हम उससे बात करें, यस, तो उसको अनयूजुअल लगेगा, उसको लगेगा कि एक जेंटलमैन है और ये एक लेवल का है, समझ रहे हैं? और ये नेचुरल लगना चाहिए, वरना क्या है, अच्छा ये सेल्समैन की तरह ये, कुछ लोग ऐसे भी परसीव करते हैं, अच्छा ट्रेनिंग दिया है लोगों, स्ट्रैटेजिक टेक्निक्स यूज कर रहे हैं, बट ऐसे कुछ ही लोग हैं। आजकल के यूथ ऐसा इतना सोच नहीं पाते, जो टेढ़े व्यक्ति होते हैं ना वही सोचते हैं, है ना। आप देखेंगे कॉन्ग्रीगेशन, आप देखेंगे जो फैमिली है, जो मैरिड है लोग हैं, वो लोग ऐसा सब सोचते हैं क्योंकि वो उन लोगों को क्या है, वो ऐसी नज़र से देखते हैं और वो भी ऐसे ही करते हैं, समझ रहे हैं। पर हमारे यूथ प्रीचिंग में यूथ ऐसा नहीं सोचते हैं, कुछ ही लोग ऐसे, आपको 100-200 में से हार्डली 2-4-5 ऐसे मिल जाएंगे, बाकी लोग तो सोचते ही नहीं कुछ। तो बोले कि ये हमारा ऐसा कुछ होने वाला है, आप किसी को भी इवन रजिस्ट्रेशन भी करना है तो हमें सबसे पहले ये मैसेज करना पड़ेगा, वो हमारी प्रोडक्ट क्यों लेगा, वो हमारी प्रोडक्ट में क्यों इंटरेस्टेड होगा, उसको ये मगज में फिट करा देने का कि ये आपके लिए है और आपको ऐसे ये बेनिफिट करेगा। मतलब हम उसको रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उसको बुक देना चाहते हैं, तो क्यों लेगा, वो तभी लेगा, उसको लगेगा कि इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा, मुझे ये कहाँ हेल्प करेगा। यस, मैं तो बोलता हूँ जब भी हम यूथ रजिस्ट्रेशन करें या जब भी हम मतलब क्या बोलते हैं किसी को बुक्स दे, तो हमारे पास कुछ छोटी मोटे ऐसे स्वीट्स भी होने चाहिए। पहले हम उसको प्रसाद लो, आओ ये प्रसाद खाओ, फिर बात चालू करो, फिर देखो क्यों नहीं सुनेगा वो, क्यों नहीं सुनेगा, सुनेगा ना, ऑब्वियस सुनेगा। पहले उसकी इतना अच्छा कोपरे का लड्डू या जो भी मतलब वो वाला नहीं, अच्छा वाला हम बनाए, अच्छा वाला सुखड़ी है जो उसको सूख दे, वाह बहुत अच्छा, मुंह मीठा किया, तो आपको ये बताना चाहिए। आप उसको बेनिफिट समझाओ कि ये बेनिफिट आपको, पर किसी के लिए भी अगर हमें किसी को भी ये समझाना है, पर उसको पता होना चाहिए कि वो जॉब करता है, वो पढ़ाई करता है,
कि क्या करता है, समझ रहे हैं? उसकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशन से, और आपको उसका खड़े रहने का तरीका, उसकी आईज की मोशंस, वो बार बार हाँ 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 पर मोबाइल में ऐसा कुछ कर रहा है, मतलब वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसे लोगों से शॉर्ट बात कर सकते हैं कि आपके पास समय होगा, अगर आप ध्यान से सुन पाए तो 2 मिनट ही लगेगा। हाँ हाँ ठीक है, या फिर वो हाँ 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 मतलब क्या, तो उसको शॉर्ट में ख़त्म कर देंगे। अच्छा ऐसा है, तो ये मैं सेशन होगा, ये होगा, ये टाइमिंग और वगैरह है, तो आप आना चाहेंगे क्या? ये आपके लिए बेनिफिट है। कि प्रैक्टिकली ये भगवद गीता में ये सेशंस आपको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में बहुत हेल्प करें। ये इन्फॉर्मेटिव क्लास होंगे, कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिससे हम रीथिंक करके हम हमारी लाइफ में वैल्यू सिस्टम्स समझ सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। यस, इससे हम धर्म, हमारी ड्यूटीज समझ सकते हैं। हम हमारे डेली कार्य कैसे अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर सकते हैं। ये सब कुछ पॉइंट्स है जो लोगों को ज़रूरत है, कि जो हमें रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं, जो हमें 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 डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं, जो हमें हमारी लाइफ में फोकस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। ये सब स्टूडेंट्स के कैची वर्ड्स हैं। यस, जो हमें सक्सेस का डेफिनेशन एंड सक्सेस का पाथ क्लियर करवाते हैं, जो हमें फेल्यूर में कैसे हम परसेप्शन रख सकते हैं, और फेल्यूर्स में भी हम कैसे हिम्मत न हार के कंटिन्यू करते रहे। और ये हम आपको क्या लगता है मोटिवेशन कब चाहिए? फिर वो भी बताएगा कि हाँ, जब मतलब क्या बोलते हैं, हमें कुछ करना हो पर हम कर ना पा रहे हो और बहुत अच्छे से करना था, वेरी नाइस है, बहुत इंटेलिजेंट, इसके लिए तो उसका आईक्यू पावर भी चेक हो जाएगा, कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। yes. तो एक मतलब कन्वर्सेशन ऐसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि जो एक नेचुरल लगे, ऐसा ना लगे कि इसने इंट्रोडक्शन इसीलिए पूछा था कि इसको ये बात करना। यस, ऐसा आप देखो, मैं बहुत बार मेरा ऐसा हुआ, जब मैं रजिस्ट्रेशन करता था, या अभी भी मैं यूथ से बात करता हूँ वगैरह वगैरह क्या, तो लोगों को लगता है ये जस्ट फ्लो फ्लो में उन्होंने बताया, ऐसा कुछ नया नहीं बताया, या उसी के लिए मेरे से बात की, ऐसा उसको सपने में भी नहीं आएगा, बहुत सोचेगा ना तो भी उसको नहीं आएगा। यस, ऐसा अच्छा अब ये करते हो, बहुत बहुत अच्छा है। अच्छा, वाह, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग, और इंजीनियरिंग करना मैंने भी यही किया। बहुत बहुत ही मतलब, हालांकि आज अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोग नॉन टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं, क्या मानना है? हाँ बट हम तो वो बताएंगे, बट ऐसा नहीं है, वो मिल जाता है अगर अच्छे से करें तो। यस यस, वो तो मिल ही मतलब क्या बोलता है, जाता है वगैरह वगैरह, क्या ऐसा। यस, वो तो है ही। आपका भगवद गीता पे क्या ख्याल है? हाँ, पढ़नी चाहिए, मैनुअल ऑफ लाइफ है। यस, अच्छा है। यस, हाँ पढ़नी चाहिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और हम छोटे थे तब हम पढ़ते थे या फिर पढ़ाते थे, हमारे स्कूल में पढ़, ओ तो आप बहुत ही अच्छे से अब गीता को अप्रिशिएट कर पाओ। यस, ऐसा मतलब क्या बोलते हैं। यस, आपको क्या लगता है, सुनने से गीता पता चल जाएगा या पढ़ने से? दोनों से, कुछ लोग पढ़ते भी हैं। यस, लेकिन हाँ मैं पढ़ता हूँ, बोले यह सही है, पढ़ सकते हैं, पर आप देखो हम हमारे आप पढ़ाई करते हो ना या जॉब है, तो अपने आप देखो आपने क्या क्या कॉमर्स किया, तो आपको क्या लगता है, अकाउंट का बुक तो आपके पास भी था, पर फिर भी हम कॉलेज गए, क्यों?
क्योंकि बहुत कुछ हम नहीं समझ सकते जो प्रोफेसर समझा सकते हैं एक्सपीरियंस से। यस, इसलिए आप देखो भगवान ने अर्जुन को गीता पढ़ा है नहीं सुना है। अगर रीडिंग प्रोसेस होता तो बोलते हैं ना कि पढ़ लो अर्जुन, पर प्रोसेस क्या, प्रोसेस तो सुनना। इसलिए क्या कर रहे हैं हम, क्लास कर रहे हैं कि जैसे अर्जुन का क्लास हुआ और अर्जुन को कंफ्यूजन था इसलिए गीता बोला, तो हमें भी कंफ्यूजन से बाहर निकालने के लिए क्लास है। समझे आप, ये उसका आईक्यू को हिट करता है। इसीलिए आप देखो हमारे भी बहुत सारे कंफ्यूजन डाउट्स क्लियर हुए हैं। और इसमें इतना समय नहीं लगता, ये तो इतना ही देना है हफ्ते में, खाली इतना एक ही बात, वो भी आपके लिए। समझ में आएगा आप? अच्छा है, 100 रुपये ही है, जो भी है इतना ही देना, क्या उसमें भी डिनर तो मिलेगा ही आपको। यस, और बोलते हैं ना ट्राई करवामा શું જાય છે, कुछ अच्छा है आपको लगेगा ऐसे कोई नुकसान होगा नहीं, आपको लगता है फायदा होगा तो बोले हाँ हाँ तो कराओ। समझे आप बात? हमें ऐसे बात करना है कि उसको ऐसा लगे कि ये एक पॉजिटिवली मेरे को इंस्पायर कर रहा है, समझ रहे? पर हमारे कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं उसको डिफीट भी कर देते हैं, उसके पास कोई बुक लेने के अलावा कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, तो आप लो तो आप रजिस्ट्रेशन कराओ ना, क्या दिक्कत है? तो कभी मेरा कैसा मूड हो गया कुछ रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाना आपको, मतलब ये हाँ तो हम सोचते इसमें क्या सोचना है, इतना अच्छा है, क्या नुकसान है इसमें आप बताओ, कुछ तो भी नहीं करवाएंगे तो ये तो मूर्खता हुई ना। सब समझने के बाद भी नहीं करवा रहे हो, मूर्ख हो गया। अरे कम ऑन, स्पेस दो यार उनको, मूर्ख है वो, सही में मूर्ख है, पर बताना थोड़ी है। उसको होगा कुछ, उसको नहीं बैठा आपका लॉजिक, उसको नहीं करना है, वो उसके पास सुकृति नहीं है, सुकृति में लोग ही आएंगे, वो दुष्कृति नो मूढ़ा नरा धमा है, वो माया अपरत ज्ञान ऐसा है उसका, वो दुष्कृति वाला है, काम उसको अप्रोच कर। बट एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए बस, लास्ट में करवाए ना करवाए, बुक ले ना ले, कोई इशू। अच्छा ऐसा हाँ अरे कोई इशू नहीं, मैंने तो आपको, हम तो देखो हमारा काम सबको बताया, तो आपको भी मतलब क्या बोलते बताया। यस, इसमें कोई इशू नहीं है आपका, मतलब क्या बोलते हैं, आप समझ ले लो, कोई इशू नहीं, आप वो करो, इतना इशू नहीं। यस, फिर कभी अगर आपको कुछ मतलब लास्ट में उसको बता सकते, कोई बात नहीं, ऐसे सेशंस तो हमारे होते ही, मतलब क्या बोलते हैं रहते हैं, आप फिर कभी करवा लेना, और कुछ भी है तो मैं तो मतलब क्या बोलते हैं नो, हम तो इधर आते जाते हैं रहते हैं। यस, आपका ऐसा हो तो आप मतलब क्या बोलते हैं नंबर ले सकते हैं, और आपको जब भी कुछ कंफ्यूजन है, डाउट या कुछ पूछना है उसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं ना, आप मुझे इधर मित्र मान सकते हैं, आपको जब भी है हम आपको कोई भी हेल्प करने के लिए मतलब तैयार है कि क्या कैसे, ठीक है, मिलते हैं। थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और हाँ बहुत अच्छा, तो उसको एक अच्छा एक्सप्लेन किया, एक अच्छा व्यक्ति, या फिर ये बताने के बाद भी कराए ना करे तो बात लो लीजिए, ये प्रसाद है, सबको देते हैं हम जो मंदिर में आता है, और आप तो इतने अच्छे व्यक्ति हैं, आपसे आपसे मुझे बात करके बहुत अच्छा लगा, लीजिए आपने मेरे को समय दिया, इसलिए मैं आपको प्रसाद दे रहा हूँ, थैंक यू। इससे एक रिलेशन जब भी आएगा आपके पास आएगा, या धीरे धीरे या फिर ऐसा आएगा, ठीक है ऐसा, श्री कृष्ण कैसे है, ठीक है, ऐसे आइए, आप माला करेंगे? मैं तो ऐसे ही माला करता हूँ, मतलब जिसको पहचान तो हाँ चलिए करते तो साथ में माला करें।
आइए साथ में पुस्तक पढ़ते हैं। सेवा के दौरान सेवा के लिए बता सकते हैं, अगर इंटरेस्ट है आपके पास समय होगा आप खुद सेवा करना चाहेंगे, अगर आप करना चाहते हैं सिर्फ फोर्स नहीं। हाँ ठीक है उसको लग लेगा। माला में क्या है कि उसका ओन बेनिफिट है, मतलब वो ऐसे पुस्तक पढ़ा उसको लगता है सेवा, मतलब ये तो यार वैसे काम कर रहा है। सेवा के वक्त हम उनके साथ माला करके पुस्तक पढ़ नहीं, सकते वो वाला नहीं कर सकते या हाँ। अभी वो नहीं बताऊँ। जब एक्सक्लूसिवली ऐसा कुछ हो। ये तो रिलेशन बनाने के लिए जो प्रोग्राम में आते हैं उनके साथ। हैं। सेवा के टाइम पे तो फिर भी नहीं कर सकते, जो मंदिर के दूसरे टाइम पे आते हैं जैसे कि सुबह आए हाँ तो कर सकते हैं। हाँ, या तो उसको हम स्पेशल बुला सकते हैं। बोले मेरे डाउट है, मेरे प्रश्न। हाँ हाँ हाँ, देखो कोई भी किसी को भी हमें टाइम देना है, किसी को भी ये करना है तो हमें उसको डायरेक्टली नहीं करना है। उसको बोला हाँ हाँ, अपने आप को चीप मत बनाओ। उसको बोला हाँ ठीक है, तो मैं मेरे शेड्यूल में चेक करता हूँ, अभी तो क्या सर्विस का समय, तो आप ऐसा तो आप कल इतने बजे आ सकते हैं क्या? कल ऐसा है तो परसों रखो। हाँ ठीक है परसों ठीक है, हाँ तो आप आइए। फिर वो आता है तब उसको समय देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे समय पे आया है। व्यक्ति को आप हाँ हाँ तो फ्री हो नहीं तो सही है, ऐसे ऐसे ही समझ रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको लगना चाहिए कि हाँ वो है। बोले एक छोटा ही प्रश्न है। अच्छा बोले क्या? बोले कि कंठी माला क्यों पहनते हैं, मतलब क्या? तो एक दो मिनट बता, मतलब सब कि ऐसा ऐसा है, आपको भी पहनना है क्या? अच्छा अच्छा हाँ पहनना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगा, है ना। आप तब तक मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा वो मेरे पास टाइम नहीं है, हम कल बात करें, या तो फिर कल आप आते तो और अच्छे से बात कर सकते हैं कि क्या। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और हम आपको लेके भी देंगे, चिंता मत करो, बहुत अच्छा है। तो उसको लगेगा कि वो कंठी माला के लिए मेरे को जाना है, तो दोबारा आएगा। समझ रहे? ऐसा तो सीरियस कैसे बनाए जाते हैं कि एपिसोड तभी खत्म हो कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे चोरी कर रहा है और मालिक आ गया और फिर एपिसोड खत्म। तो लोगों अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, तो इसके लिए वो देखने के लिए क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसमें भी ऐसा कुछ आएगा इंटरेस्टिंग, हाँ तो उसको जेल होनी चाहिए, तो उसको जेल ले गए, है ना, जेल ले गए, पकड़ा गया, पर फिर वो भागने का प्लान था, तो भागा क्यों नहीं, वो तीसरे एपिसोड में देखा है। या फिर उसका इंटरेस्ट मेंटेन करने के लिए अच्छा तो नेक्स्ट ये हो, इसलिए अभी जनरली मैं ऐसे करता हूँ, सेशन खत्म होता है इसमें बोलता हूँ, तो अभी लास्ट में अगर अभी हम अभी आगे क्या करेंगे, अभी हम आगे आत्मा के बारे में देखेंगे कि आत्मा के जीवन में, आत्मा का ज्ञान, जीवन में ज्ञान लेने से हमें क्या प्रैक्टिकल बेनिफिट होता है, और आत्मा का ABCD वो नेक्स्ट बताएंगे। उसको इंटरेस्ट रहे, क्यूरियोसिटी रहे कि रविवार को हमारा ये वाला होने वाला, इसमें बहुत अच्छा लगेगा, आप आओ। अच्छा ऐसा हाँ, तो इसको रिलेशन, उसको कुछ मत बोलो करो, करेक्ट तो बिल्कुल नहीं ना, करेक्ट करना है उसको, ना कमियां खामी कुछ नहीं, बस सुनना है उसको, है ना, जो भी कर रहा है हाँ ठीक है कोई बात नहीं। और हमें से रिलेशन बना के फिर उसको इंस्पायर करना है, हमें किसको समय देना है, थोड़ा हफ्ता 10 दिन थोड़ा टाइम दे सकते हैं, तो उसको अल्टीमेटली क्या बोलना है, सेशन में जाओ, जो लेक्चर में आएगा वही अच्छा सिंसियर सीरियस। यस, या आपको ऐसा लगता है कि मैं बोलूंगा तो उसको लगेगा कि ये मेरे को वो कर रहा है वो कर रहा है, तो आप उसके साथ फ्रेंडली रहो, आप मेरे से कभी मिला दो, या फिर ऐसे इनके वो मतलब क्या बोल ये किसी को लाना है तो ये इन लोगों से मिलवा सकते हैं कि क्या हाँ अच्छा अच्छा ठीक है, आपका कोई कैसा है वगैरह वगैरह। यस, तो
ऐसे इंट्रोड्यूस कि ये हमारे सीनियर्स हैं, ओ अच्छा ये इनसे सीनियर्स है, तो उसका वो थोड़ा रिस्पेक्ट बढ़ जाता है कि ये इससे सीनियर है क्या, या फिर ये हमारे अल्टीमेटली मतलब क्या बोलते हैं सीनियर है, ये हमारे सेशन में ये स्पीकर, अच्छा ये है ऐसा ऐसा है, इनका नाम ये है, इनका नाम वो है, ऐसे उनको इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। इसकी ये हमारे प्रभु जी ये है ना, इन्होंने ये पढ़ाई किया है, और यूथ के लिए हम सेशंस करते, बहुत सारे लोग जुड़े हो और बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि क्या कैसे है, तो फिर वो इनका नाम ये है, ये पढ़ाई करते हैं, ये बहुत ही अच्छे मतलब क्या बोलते हैं थोड़े दिन से आते हैं, या फिर ये बहुत इंटरेस्टेड है गीता सुनने के लिए समझने के लिए, उनका भी तारीफ कर सकते हैं, समझ रहे हो, तो उनको लगे हाँ ओ हमारे बारे में तारीफ किया, अच्छा मतलब क्या बोलते हैं ओ अच्छा आपको इंटरेस्ट है ये, तो आप इनको थोड़ा कुछ बताइए, अच्छा तो उनको क्या लगे इन्होंने बोला है इसलिए वो बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा, या फिर आप भी अब कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं वगैरह वगैरह, यस तो हम बताएंगे कि अच्छा ऐसा ऐसा है क्या, तो हम समय ऐसे कंक्लूजन के आप सेशन में हो है ना, आप ऐसा तो पुस्तक लो, आप उनको पुस्तक दो, पुस्तक पढ़ लो वगैरह वगैरह, तो इसको क्या लगेगा ये नहीं बोल रहा है, ये मेरी हेल्प कर रहा है, बट ये बता रहे हैं ओ अच्छा ऐसा 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 है, तो फिर वो आपसे और क्लोज होगा कि ऐसा है मेरा फ्रेंड, समझा। फिर जो भी आएगा वो आपसे बात करेगा, अरे हम तो ऐसा ऐसा है, धीरे धीरे जैसे ही क्लोज होगा वो, अरे मेरे घर में ऐसे ऐसे इशू चल रहा है, ओ अच्छा ओ तो भी आप आते हो, बहुत अच्छा मतलब है, पर मेरे को ऐसा क्या लगता है कि ये वाला सॉल्यूशन ना हमें बात करना चाहिए, तो आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए, हाँ तो एक्चुअली मेरा भी ऐसा कोई प्रॉब्लम था, मतलब मेरा ऐसा दूसरा ऐसा प्रॉब्लम, मैं भी जब आता था मैं भी कुछ इशू फेस करता था, मैंने प्रोजेक्ट से बात किया तो मेरे बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया, तो आपको भी करना चाहिए, आपको क्या लगता है करना चाहिए, हाँ बात करते हैं, तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके रखता हूँ कि वो कब समय देंगे, वैसे बिजी होते हैं बट फिर भी थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट बोल रहे हैं कोई डिस्कस, तो आप फिर बताना उनसे, तो वो आपको और अच्छे सॉल्यूशन देगा ना, अच्छा हाँ ठीक है बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, तो इससे क्या होता है कि उसका फील करता है कि वो अच्छा ये, तो वो आप फिर उसका आप पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगी कि अच्छा ये हमें हेल्प करवाता है वगैरह, उसको क्या बोलते हैं हम कनेक्ट कर रहे हैं वगैरह, ये हमारा एक रोल है, हमारा रोल है वो इसे कनेक्ट करवाना होगा, इससे हम भी सीखेंगे, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम धीरे 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 जैसे हम ये सब ट्रेनिंग प्रोग्राम खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे वो होगा, यस एक साल कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद फिर टारगेट क्या है कि सबसे पहले इसको बोलते हैं कि हम फ्रंट लाइनर का रोल प्ले कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि हम जस्ट कनेक्ट करने के एक माध्यम बन रहे हैं, उसके बाद फैसिलिटेटर्स का रोल आता है, फैसिलिटेटर रोल में कैसा होता है कि हाँ व्यक्ति उसको इनिशियली बता सकता है, समझा सकता है, यस थोड़े छोटे मोटे डाउट्स क्लियर कर सकता है, यस बट कनेक्शन उधर सेशंस में देना है, यस और फिर जब वो धीरे धीरे मैच्योर होगा और लेक्चर देने लगेगा और धीरे धीरे वो होगा तब वो गाइड बन सकता है, पर एक लेवल तक 50% गाइड करेगा, मेन इंस्ट्रक्शंस काउंसिलर से आएगा, और ये गोल है कि हमें फ्रंट लाइनर से फैसिलिटेटर से गाइड से ऊपर हमें काउंसिलर तक जाना है, काउंसिलर क्या है जो हमारा पोजीशन है कि जो लेक्चर जो इंडिविजुअल अभी गाइड करेगा, अभी इसको लेक्चर देगा और वो करेगा, यस
कि भाई ओके, तो सब प्रचारक के अपने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। फिर हम ऐसे कोच बन जाएंगे कि हाँ भाई कभी कभी जाएंगे लेक्चर देने के लिए। बाकी जैसे हम सबको है नहीं, तो फिर आप उन लोगों को प्रीचिंग का ट्रेडिंग स्किल्स ये सब करना है। यस तो ये हायरार्की सिस्टम ऐसे ये विजन है कि आगे बढ़ना। और नेक्स्ट एक 1.5 साल में हमें ये करना है, एटलीस्ट व्यक्ति गाइड तक तो पहुंची मतलब जाए, और 1.5-2 साल के बाद व्यक्ति इंडिविजुअल लीड करे। काउंसिलर बने। बट ये काउंसिलर का सफर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट किसी को काउंसिलर बनाया जाता है, ऐसा नहीं होता। तो उसका एक्सपीरियंस नहीं होता ना, फैसिलिटेशन कैसे करना है, गाइडेंस कैसे देना है, फ्रंट लाइनर को क्या चैलेंज आएंगे क्या, क्योंकि वो उसने जॉब किया नहीं है। हमारा भी ऐसे ही ग्रेजुअल एलिवेशन हुआ है। मैं पहले आता था तो मेरा पहला सर्विस क्या है सर, प्रोग्राम में मैं अटेंडेंस लेता था, कॉलिंग करता था। पहले मैं लेक्चर में आता गया लेवल 1 में चला गया। उसके बाद सेवा दिया गया कि आपको क्या सैटरडे स्टॉल पे बैठना है, आपको क्या करना है, कॉलिंग करना है, आपको मैसेज भेजना है।